Okay, friends, am I audible to you? Can you hear me? Yes, sir. Okay, so this session is for DOMS IIT Madras and those students who got the call from IIT Madras. So let me tell you how to prepare now for this. Before that, tell me they have given some dates. When is your interview? Sir, 30th of April. तो हमारे सर पास 15 दिन का 29th टाइम है. Yeah, me 29th also 20. 29th 30th of April, right? तो हमारे पास रफली 15 दिन है, 14-15 दिन है, and they are sufficient for us to prepare. Now, irrespective of your branches, friends, DOMS, Madras में, the most important thing is your research proposal. They will see that and ask you question. And then from research proposal, they will start asking you questions of the management. What you can do is, there are two things what you can do. One, research proposal में whatever terminologies you have written, please underline those terminologies and start finding the meaning of that. So whatever you have written, they are going to ask you, they are going to pick up the management terminologies from there and ask you what is the meaning of this. Suppose you have written supply chain management, you are a computer engineer, they are going to ask you, can you tell us what is the supply chain of software industry? Suppose you are agriculture engineer, they are going to ask you what is the supply chain of agriculture. You are a mechanical engineer, they are going to ask you what is the supply chain of automobile sector. And for mechanical engineers, entire industrial engineering is very important subject. For civil engineers, the project management is very important subject. And for other branch of engineering, your terminologies are very important. Plus, visit the DOMS IIT Madras website and see what terminologies are written in the research work of the professors. सर And yeah, so let me सर finish and आपकी then you can ask me questions. सर Hmm? आपकी आवाज बीच बीच में बहुत ज्यादा लो हो जा रही है सर, बस यही Is बोलना this था. for everyone or only for Anand? Others can hear me? यस सर. सर क्लियर है आवाज. So Anand, it is only, I think, related to you. So friends, then you go on the website of IIT Madras DOMS and there see the research work of the professors and terminologies. You have to pick it up from there also. Now there are different kind of professor. Obviously, there can be professors of finance. I'm not asking about finance. Professor of marketing. I'm not talking about marketing. I'm talking about those professors who are related to your domain, your field of engineering, like operation research, and related to integrated technology, those kind of things. So you need to find out the professors of your own research area which you have reflected, shown, and need to find the terminologies. Keep a copy and pen and keep noting down the things. The biggest mistake students do while preparing for interview is they do not write the notes. Suppose I know that my interview is now on 29th of April. I'll keep a dedicated copy, pen, and start noting down the things. I'll go to the website of IIT Madras and I'll go to the professors which are related to my field. Let's say operation research. I'll go to operation research. Let's see what these guys are doing, what terms they are using, and I keep noting down the terms. Professors are going to ask you question in the interview which are related to their field. And suppose we get to know that these are their field, we prepare accordingly. So on the internet, you will find the answer to everything. Suppose some terminology you are not getting. Let's say there's a term written in research proposal or in the research work of the professor, that is opportunity cost. You don't know what is opportunity cost. You just type it out, what is opportunity cost, and the things will come up. That is how you have to prepare. That is how you have to basically do this. On your PDR, there's a NITI Bombay folder. NITI Bombay used to be institute which used to call for management courses through GATE. Now it is IIM Mumbai. So there is a NITI Bombay folder. So you please go through that folder and find out that topics which you can go through. Not blindly, but you can go through the topics, find it out those topics, and start revising it. Little bit knowledge of the mathematics will also be required. I mean, whatever you have done, that knowledge will also be required. And at the same time, start taking the snaps with me. Now, how to take snaps with me? 10:15 p.m. in the night, same very Zoom link. You can take a slot with me. You prepare and then you show me your research proposal. I'll ask you a couple of questions. And also, your own branch mentors like electronics or computers, you show them also your research proposal and tell them to ask you some questions from there. So that is how we can prepare. But largely, you have to give your snaps to me and you have to learn those terminologies. I'm going to ask you those terminology from your research proposal.
So you will send me your research proposal on my WhatsApp, and after seeing that, I'll be asking you some questions. So that way you have to prepare. Now, any question you have in your mind which you want to ask me now? Yeah, हेलो yeah. सर मेरा 27 को BHU में भी है डिसीजन साइंस का इंटरव्यू। तो सर दोनों के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है कि कुछ उसमें अलग पूछेंगे? Obviously, decision science is data science. Mathematics will be more in that. Plus, decision science का सिलेबस आपको दे रखा है उन्होंने। डिसीजन साइंस में वो आपके रिसर्च प्रपोजल से नहीं पूछेंगे, यहाँ रिसर्च प्रपोजल से पूछेंगे। डिसीजन साइंस में वो मैथमेटिक्स ज्यादा पूछेंगे, उन्होंने सिलेबस भी दे रखा है, यहाँ सिलेबस नहीं दिया हुआ। देर आर डिफरेंसेस बट देन देर आर सिमिलरिटी ऑल्सो। And one more thing, like once you got a call from DOMS Madras, I came to know that students with very low gate score have also got call. Students with very high gate score have also got the call. Once the call has come, immaterial, it is your gate score is immaterial. Then it is, I think, the intro which is very, very important. So take it very seriously, and you're very close to get the best option. Through gate, this is one of the best options you can get. एंड सर वन मोर थिंग सर, कितना टाइम तक होगा इंटरव्यू? 15 मिनट, 15 मिनट के आसपास एवरेज, 15-20 मिनट चल जाता है। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स? सर रिटन एग्जाम कोई लेंगे क्या? डॉम्स में मैंने सुना तो नहीं रिटन एग्जाम, इंटरव्यू होता है, राइट? सो दे ओनली टेक इंटरव्यू। ओके सर। एनी अदर एंड क्वेश्चन सर वन फ्रेंड्स? मोर थिंग, सर जिनका ऑलरेडी डॉम्स में हुआ सर उनके साथ में कोई पॉसिबल है होना सेशन? नहीं, मेरे को समझा नहीं। हाँ, मतलब जो ऑलरेडी वहाँ डॉम्स में बैठे हुए हैं, यस सर, यस सर। किया जा सकता है, सेशन किया जा सकता है। आई कैन कॉल सम स्टूडेंट्स। या तो सर प्लीज एक बार अगर उनके साथ हो जाए सर सेशन तो यस, हेल्प हो आई जाएगी। विल ब्रिंग देम। हाँ, एनीबॉडी एल्स? Any other question? Sir, actually I know this is a session for who have got calls from DOM. तो सर मुझे वैसे कॉल आया नहीं है, बट आई वांट टू नो कि किस किस का निकल गया IIT मद्रास में कॉल। मतलब मैंने This is not the platform, Gaurav, where you can get that detail. I think आप अपने Okay. ग्रुप में जाओगे तो वहां पे आपको वो मिल जाएगा। This is like those who have got call, how to prepare further. That is the session, right? Thank you. सर Yeah. नॉर्मल हमारा जो गेट टीए का मैंने एग्जाम दिया था तो उसके सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करने हैं इसके लिए, डॉम्स गेट के लिए? देखो, डॉम्स के लिए तो डीए का कोई रिलेशन नहीं है। डॉम्स इज मैनेजमेंट कोर्स, उसमें डाटा साइंस का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे नहीं डाटा साइंस पूछेगा तुमसे, डॉम्स अलग है। सर मैंने एसओपी में मेंशन किया था, एसओपी और रिसर्च प्रपोजल दोनों में डेटा साइंस के टर्मिनोलॉजी कई बार। अगर मेंशन किया तो तैयारी करो। रिसर्च प्रपोजल में अगर जो मेंशन किया तो तैयार करना पड़ेगा तुम्हें। ओके सर। राइट? एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स? देखो, सर यू नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि एक बार कॉल आ गया, चाहे गेट स्कोर 400 पे आया है, चाहे 350 पे आया है, चाहे 750 पे आया है, तो ऑल गाइस आर इक्वल नाउ। जस्ट गिव योर बेस्ट नाउ। सर एक कॉमन डाउट था, इन केस सर अब बहुत अच्छे से भी प्रिपेयर करते हैं तो फिर भी ऐसा हो सकता है कि सर कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना आए, तो सर उसको वहां पे कैसे हैंडल, मतलब अगर कुछ ऐसा पूछ दिया गया जो हमें नहीं पता है तो फिर उस चीज को कैसे टैकल कर सकते हैं सर, या क्या बोलना You सही रहेगा? you are to be honest, and you are जी not to सर। bluff. You are not to give wrong answer, and you have to think for a while for the question, and then you say, sorry sir, no idea about this. That's it. This is what you have to say. ओ, उससे नंबर नहीं करते, आंसर ना ओके सर। देने से नंबर नहीं करते, गलत आंसर देने से नंबर करते हैं। It is like सर if you don't attempt a question, you will neither get marks nor negative marking. But if you give wrong answer, then there is a negative marking. ओके सर, So not answering is like leaving the question blank. थैंक यू सर। सर लैंग्वेज का भी उसमें होता है क्या, मतलब कि? यार मद्रास है तो थोड़ा होता तो है, इंग्लिश अच्छा तो सर। चाहिए। और वैसे मैनेजमेंट में जा रहे हो तो इंग्लिश यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट इंग्लिश। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स? तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एक चीज करो कि डॉम्स में द स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड प्रीवियसली, आई रिमेंबर आई हैव रिकॉर्डेड लॉट ऑफ इंटरेक्शन सेशन विद देम। प्लीज स्टार्ट वाचिंग देयर वीडियोस, watch their videos. Your PD Education, selected candidates of DOMS, watch their videos, what they are saying. I'm very detailed. I've asked them what was the interview, how long it was, what question they asked.
So how much is important? So selected candidate, the moment you will get selected, I'll interact with you. I'll record your detailed session and I'll put on the YouTube. Why? Your juniors will watch it. So that way, and not only that, I have interacted one session. I remember 5-6 students of DOMS. Those were selected candidates there. Last year, I recorded a session with them, and all those 5-6 students have in detail given, inputs, how they should prepare, what is the importance of that. Watch those videos today and start preparing, right, friends? And more the snaps you do with me, more the practice you do, friends, you will get more confident. तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, उसी से तुम्हारा आगे काम चलेगा. मैं तुम्हारा एसओपी रिसर्च प्रपोजल के बेस पे आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन, दैट इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉरवर्ड. तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, राइट, एंड यू विल क्लियर इट. अभी से मान के चलना कि तुम क्लियर कर जाओगे, पॉजिटिव होके तैयारी करना, एंड पॉजिटिव होके ये एग्जाम, ये तुम्हारा निकल जाएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा तुम्हें. डॉम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे फोकस करना. सर मैथमेटिक्स का मतलब क्वेश्चन बेसिक बेसिक जो त्यागी जी करवा रहे हैं, जो त्यागी जी करवा रहे हैं उतना मैथ्स करते जाना. और स्टैटिस्टिक्स का पढ़ना पड़ेगा क्या मैनेजमेंट के लिए? आई डोंट नो, योर बैकग्राउंड इज स्टैटिस्टिक्स? नो सर, इट्स सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन not required. I don't think it's required unless until you are related to statistics. Okay, Raghavinder, so you are not unmuting yourself, so just shoot your question in the written form. Yeah. सर आंसर अगर कितनी सीट्स होती हैं सर प्रोग्राम में? यार मेरे को exactly याद तो नहीं है अभी, मैंने वो इंटरव्यू में बच्चों से पूछा हुआ है, so maybe you have to watch that. ओके सर. अगर सर कोई सीएस बैकग्राउंड से है तो क्या उसके कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछेंगे या पूरा 100% रिसर्च प्रपोजल बेस्ड होगा? नहीं, your basic subjects, whatever subjects जी your background here, जी सर. research proposal and DOMS, whatever they are doing अच्छा, related to that, ओके combination सर. of that. सर मेरे को मटेरियल साइंस से मद्रास में आया है, तो मैंने अभी ज्वाइन किया था सेशन, तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? मटेरियल साइंस की तैयारी करो, यू हैव टू प्रिपेयर मटेरियल साइंस. मेटलर्जी होता है वहां पे, दे आस्क मोर मेटलर्जी देन मटेरियल साइंस, सो यू हैव टू प्रिपेयर मेटलर्जी. ओके. Written exam was there last year and interview was also there. So Okay. for Snap, you have to join 10:15 p.m. this very Zoom link and then take a slot with me. But only after you are ready, you are prepared. Then you have to take a Snap. और सर इसके लिए आईआईटी मद्रास मटेरियल साइंस के लिए मैथमेटिक्स भी प्रिपेयर करना है? Little bit engineering mathematics knowledge which you should have, not in depth. ओके. Sir, चलिए friends, then I Sir. take leave. Yeah, you have Sir. any some more questions? Yeah. Yes, sir. Huh. Yes. Ask your question fast, friends. Yeah. If you have any Sir. questions, please ask Sir. fast. Yeah. मतलब मेरे को आईआईटी बीएचयू में कॉल आया था, वो 30 अप्रैल को है, और सेम आईआईटी मद्रास से डॉम्स के लिए मुझे 30 को आया है, तो मुझे क्या DOMS. करना चाहिए? DOMS. But with Okay. preparation. This is the lifetime opportunity. Grab it. ओके The सर. moment you've got a call, you all are equal. In BHU, you may not be equal. They give Okay. value to gate score, but now you are equal. Give your 100% for DOMS. श्योर सर. ओके, थैंक यू सर. सर मुझे स्नैप इंटरव्यू लगाने थे, और सर आज मैंने मनीष सर के साथ लगाया भी है, तो सर और भी किसी टीचर के साथ मुझे लगाना है? और अगर लगा लो. लगाना है तो अच्छा, तो किस किस के साथ लगा सकता हूँ? मेरे साथ लगा लो ना. आपकी बैकग्राउंड क्या है? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो लगा लेना मेरे साथ मटेरियल साइंस का. अच्छा सर. मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, लगा लेना, लेकिन कोई इशू नहीं. मैं मैनेजमेंट वाले बच्चों को ज्यादा थोड़ा सा कर रहा हूँ अभी, तो ये थोड़ा सा अच्छा. मैनेजमेंट सेल ऐसे बच्चे ज्यादा हैं. बट लगा लेना आप, मेरे साथ भी लगाओ, मनीष सर के साथ भी लगाओ. सर आप विनीत सर के साथ भी कह रहे थे शायद. हाँ लगाओ. तो विनीत, Okay. मैं, मनीष, पीयूष, 3-4 मेंटर है ना, लगाओ. अच्छा सर, ठीक है. सर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से सवाल पूछेंगे? फिर से बोलिए. हेलो सर, फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट होता है हम लोगों का बीटेक में, उससे भी सवाल पूछा जाएगा? हाँ, इंटर्नशिप से भी, इंटर्नशिप भी, प्रोजेक्ट भी. सर सर डिसीजन साइंस का सर इंटरव्यू आप ही लेंगे स्नैप, या कोई और लेंगे? नहीं, डिसीजन साइंस लेंगे त्यागी सर और वो अपने मुकेश सर. सर एक और चीज है ओके डिसीजन सर. साइंस को लेके,
डिसीजन साइंस का जो सिलेबस दिया है हमें एलोकेट किया गया है वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इन्वेंटरी हाँ मैनेजमेंट और हाँ बाकी वो सारी चीजें। जो बीएचयू का डिसीजन साइंस है, नहीं सॉरी कहाँ का है, बीएचयू ना, कहाँ का डिसीजन जी साइंस सर, जी सर, सिलेबस, बीएचयू हाँ का। उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, वो मैं लूंगा, ठीक वो है तो सर। मेरा वाला पार्ट है। सर वही ठीक सब है। मैंने पूछा सर, आईआईटी बीएचयू वाला डिसीजन साइंस। हाँ वो नहीं, देखो उसमें भी 3 टीचर हैं, मैथ्स भी उसमें, कंप्यूटर साइंस भी है उसमें, इंडस्ट्रियल भी है, 3 मेंटर है, मैथमेटिक्स के लिए त्यागी सर, मुकेश सर और मैं। बट सर जो सिलेबस है उसमें सर कंप्यूटर साइंस का इतना है नहीं कोई टॉपिक। ओनली ओनली उसमें डेटा साइंस कुछ नहीं दिया हुआ है कंप्यूटर्स का। नहीं सर, नो सर, नो सर। चलो टाइम और अच्छी एंड बात है। वर्क स्टडी है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है और ये सारी चीजें ठीक हैं। है, वो तो फिर मैकेनिकल का पार्ट है, वो मेरा पार्ट है सारा। तैयार करो उसको, मेरे को दो, राइट। सर मेरे को सिलेबस ये की कॉपी भेज देना यार, उसकी सिलेबस की कॉपी भेजो मेरे को उसकी, बीएचयू की। सर ठीक इसमें है सर सर। सीपीएम, पर्ट, इन्वेंटरी, क्वालिटी, ये सब है। सारे का योरपीडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इसकी, क्वालिटी वगैरह की, पर्ट सीपीएम की, सबकी प्लेलिस्ट है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्री में जाओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री का सिलेबस डाल दिया उसने, सर वो वहां पे मिल गया है गो थ्रू सर। करना। हाँ सर सर, देख मुझको लिया सर मैंने। एक चीज नहीं मिली है सर, ये इकोनॉमिक एनालिसिस और कॉस्टिंग वगैरह ये सब नहीं मिला है सर। कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये। अगर आप ऐसे नेट पे डालोगे तो कुछ ना कुछ टॉपिक्स इसमें से आ जाएगा, बेसिक ठीक है क्वेश्चन सर, होते हैं। क्योंकि सब बाकी सब ब्रेक तो ब्रेक इवन योरपीडिया पे मिल एनालिसिस, गया था। ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह जो है ना, वो इसी में आता है। अपॉर्चुनिटी, ये आपकी कॉस्ट एनालिसिस, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसी का पार्ट है ये सारा। और सर ये किस में आता है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग टॉपिक होता है, पर यू नीड नॉट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, अलग अलग ब्रांचेस है ना, इसलिए डाला हूँ मैं। ये सर वो सिलेबस में से मेंशन था जो ईमेल आया था बीएचयू से, हम्म, इसलिए तो ठीक सर थोड़ा सा रहा। है। सर मेरा बीएचयू में बायोमेडिकल में भी आया है और मटेरियल साइंस में भी आया है, बट सर प्रॉब्लम हम्म, ये है कि वो 1 वीक अपार्ट हैं। तो सर कैन आई स्किप बायोमेडिकल? बायोमेडिकल पहले है सर। वन ऑफ द दीज टू यू कैन स्किप। ओके। ये मेरे को सिलेबस भेज दो फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस आपने मेरे को अभी टाइप किया ना, मेरे को भेज दो इसको। बीएचयू का कब है, इंटरव्यू कब है, डिसीजन साइंस बीएचयू का? 27th को है सर। जी सर। 27 को, ठीक है, मेरे को भेजो इसका सिलेबस भेजो, आई विल गेट यू समथिंग इन दिस। सर खाली सर अगर इसका सब मिल जाता है ना, कॉस्टिंग वगैरह का सर, क्योंकि बाकी सब तो योरपीडिया पे अवेलेबल है। हाँ, कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है, वो भी अवेलेबल है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा वहां पे तुम्हें। इकोनॉमिक एनालिसिस में बताता रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी चीज है जो नहीं होगी उस पे, बाकी सारा है, वो मैं निशांत सर को बताता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका जो कॉस्टिंग है और मम्मी। इकोनॉमिक एनालिसिस, ये निशांत सर के साथ लगाओ, निशांत सर हैं इसके एक्सपर्ट, राइट। लेट मी नोट इट एंड सेंड इट टू निशांत सर। मैं इसका आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, और इसका हम कर लेते हैं, ये है इकोनॉमिक एनालिसिस एंड लगाना स्टार्ट करें फिर आप उनके साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉस्टिंग, बस ये 3 पार्ट है, बाकी तो आपका सारा है वहां पे पड़ा हुआ, ठीक है, डन। एनीथिंग एल्स फ्रेंड्स? सर ये जी प्लीज सर। सर ग्रुप में डाल दीजिएगा सर, ये वाला टॉपिक जो है। हाँ ठीक है, डन। एनीथिंग थैंक यू एल्स? सर सर। मटेरियल साइंस में सर सिलेबस मेंशन जो कर रखा था वही कर रखा था, बीएचयू की बात कर रहा हूँ। मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा सर मटेरियल फिजिक्स एंड मटेरियल केमिस्ट्री रिलेटेड टू इंजीनियरिंग एरिया। हम्म, तो सर इसमें कुछ अलग है क्या जो कि हम इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ते हैं? नहीं, इंजीनियरिंग में जो पढ़ते हैं वही है, पर डिपेंड करता है आपने कितना पढ़ा है। ओके। हम्म, ओके। तो वही चीज सर। ओके फ्रेंड्स, देन आई टेक लीव ऑफ यू, अभी स्टार्ट करो जैसे मैंने बताया तैयारी करना, एंड आई विल कैच यू फॉर स्नैप्स, थैंक यू।